Hello students, welcome to Social Studies class. In our today's class, we will study Chapter 3, Our Civil Services. In the previous chapter, that is Chapter 2, you have learned how government is formed and how it works. चैप्टर 2 आवर गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कैसे काम करती है. वी आर चूजिंग आवर गवर्नमेंट, राइट. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर citizens of India, that is people of India, chose their government through voting, right. Through voting we choose our government, and when government is formed, it comes into force. The ministers work for the country, right. The ministers are in charge of administering and running the country, running the states, the union territories and the central government. But they only take decision and look after the work. Actual work can't be carried out by a handful of ministers. So, civil services help them, right. The employees of civil services, that is civil servants, help the minister to carry out their plan, to carry out their decision. We know that government changes after a certain period of time, but the civil servants remain the same, because civil servants are not elected. Okay, they are not elected and they are appointed. So civil servants remain the same, while government can be formed again also, right. गवर्नमेंट जो हमारी है वो चेंज होती रहती है, उसमें मिनिस्टर्स चेंज होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बट जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, वो चेंज नहीं होते, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते, वो अपॉइंटेड होते हैं. अब कौन उन्हें अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सिविल सर्वेंट, एंड हाउ दे आर अपॉइंटेड वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो दे डू नॉट चेंज विथ एवरी इलेक्शन. हर बार इलेक्शन होता है 5 साल में, 3 साल में, राइट. सो ये इलेक्शन में चेंजेस आते हैं, मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, बट ये चेंज नहीं होते, ये अपॉइंटेड होते हैं. और इन्हीं के वजह से सारा जो वर्किंग है वो स्मूथली चलता रहता है. सो हु हेल्प द मिनिस्टर्स? सिविल सर्वेंट्स हेल्प द मिनिस्टर्स टू कैरी आउट the plans and decisions. So ministers run the country and the states, but handful of ministers cannot do all the work. Ministers अपने आप अपने से ही सारा काम नहीं कर सकते, इसीलिए वो काम करवाते हैं ऑफिशियल्स से. ऐसे ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो सिविल ऑफिशियल्स होते हैं. ओके, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं. सो टाइप्स ऑफ सर्विसेज. देयर आर डिफरेंट सिविल सर्विसेज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क. नाउ वी नो दैट there are different levels of government and different types of work going on in the country by the government. So हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के काम होते हैं और अलग अलग लेवल पे होते हैं. सो उनके लिए सिविल
ऑफिशियल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. सो सिविल सर्वेंट्स आर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्क allotted based on the work which government make them do. Okay, based on which government they work under, they can be grouped under central, state and all India civil services. अभी ऐसे जो ऑफिशियल्स है, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ है जो देश के लिए और गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिस लेवल के अंडर काम करते हैं और जिस डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं उस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, ग्रुप कैटेगराइज किया गया है, राइट. सो द 3 मेन ग्रुप्स आर सेंट्रल, state and all India civil services. So the one which works for central government comes under central civil services. The ones which work for the state comes under state civil services, and the ones which can work for state as well as for central comes under all India civil services. For example, Indian Revenue Service IRS is one of many central civil services. IRS है यानी रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है. It collects the taxes which are revenue for government. ठीक है, तो IRS जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंडर आता है. सो इट वर्क्स फॉर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इज वन ऑफ द मैनी सेंट्रल सिविल सर्विसेज. इट्स ऑफिसर्स, अब इसके अंडर में जो सिविल ऑफिसर्स है, दे लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड वर्क ओनली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में क्या करते हैं, टैक्स रिलेटेड काम होता है. ठीक है, हम सब टैक्स भरते हैं. वी ऑल पे टैक्स इन वन और अदर फॉर्म, राइट, लाइक वैट, GST, टैक्सेस ऑन deducted at source, income tax, and we pay taxes, and the collection of taxes is the working of Indian Revenue Service which comes under central government. The next is Indian Forest Services, IFS. Okay, IFS क्या करते हैं, नेम में ही लिखा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो ये इंडिया में सारे फॉरेस्ट है उनको मेंटेन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, राइट. सो द ऑफिसर्स टेक केयर एंड मेंटेन इंडियाज फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. दे कैन वर्क एनीवेयर इन इंडिया. सो फॉरेस्ट आर ऑल ओवर स्प्रेडेड इन इंडिया. सो दे कैन वर्क एनीवेयर आइदर अंडर अ स्टेट और सेंट्रल. तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी काम कर सकते हैं. इसीलिए ये जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आएंगे. जो दोनों के लिए काम कर सकते हैं वो आएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज में. द स्टेट्स हैव देयर सेपरेट सिविल सर्विसेज. In this chapter, we will discuss the 3 types of services in greater detail. ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सेंट्रल में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा IRS का, ऑल इंडिया में हमने पढ़ा IFS का, और स्टेट लेवल यानी जो स्टेट के अंडर काम करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं.
Okay, so we are going to study the types of services. In this picture, you can see the Zoological Survey of India is the part of Central Civil Services. As I told you, IFS can work under state as well as work under the central government. तो जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेस होते हैं, तो वो हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, हमारे वैरायटी ऑफ स्पीसीज के लिए जो बर्ड्स होती है या जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी सर्वे होती है, ठीक है, काउंटिंग होती है. सो द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया is a part of Central Civil Services. Among its job is keeping the track of wildlife numbers. So wildlife जो species है, ठीक है, wildlife animals या birds है, उनका maintenance, उनकी counting होती है, right? So zoological survey is a part of IFS service and it comes under Central Civil Service. The second image is of one bridge. Okay, so officers of Indian Engineering Service manage the things like construction of railway, roads, bridges and so on. Okay, so जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, ठीक है, जो ऑफिसर्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या मैनेज करते हैं? दे मैनेज द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे, रोड्स, ब्रिजेस एंड सो ऑन. ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उनका मैनेजमेंट, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है, वो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उसका मेंटेनेंस, रोड, ब्रिजेस, ये सब कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट बनाती है. सो गवर्नमेंट के अंडर में जो सिविल ऑफिसर्स है, इंडियन सिविल ऑफिसर्स who are providing the engineering service makes and maintains this bridge, road and railways. The Indian Administrative Service IAS, in the days when we were under the British, this was known as Indian Civil Service. IAS is a very famous term you might have heard. आपने IAS सुना होगा, IAS ऑफिसर. The Indian Administrative Service. The Indian Administrative Service is the highest rank of civil service. Okay, this is the dream of many upcoming youth. Okay, IAS बनने का सपना जो है वो काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों का होता है, राइट? और IAS इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ सिविल सर्विस जॉब. ये जो सर्विस है, सिविल सर्विस, वो उन दिनों में इंट्रोड्यूस हुआ था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे. Many consider it to be the most important of the civil service. ये सबसे important civil service है. Simply but put to administer means to manage something and that is the job of this service. Okay, ये IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है? गवर्नमेंट के काम को मैनेज करना. ठीक है, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो रूल्स और प्लान्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है,
और ध्यान रखना, ये कौन कौन सी बात का ध्यान रखते हैं? डेवलपमेंट का, हेल्थ केयर सेक्टर का, ठीक है। तो आईएएस कौन होते हैं? इंचार्ज होते हैं, ठीक है। दे आर द इंचार्ज ऑफ द वर्क, ओके, ऑफ द वर्क। अभी ये कौन कौन से वर्क संभालते हैं? दे टेक केयर ऑफ द एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द रीजन, ओके। आईएएस का काम क्या होता है? सब मैनेज करना, ओके, इंस्ट्रक्शंस देना और अपने अंडर के एम्प्लॉयज से काम लेना। मिनिस्टर्स को ये रिपोर्ट करते हैं, ओके। दे आर आंसरेबल टू मिनिस्टर्स, दे वर्क एज पर द प्लान and the decision of the government. It manages the everyday work of the government according to the set of rules. It carries out the plan of government like getting the development work done. Development करवाना हो तो वो काम, ठीक है। फिर एजुकेशन रिलेटेड काम होता है, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट का हैंडलिंग करते हैं आईएएस, ओके। आईएएस ऑफिसर्स आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होता है? विभाग होता है, ठीक है। अलग अलग काम होते हैं, सबके डिपार्टमेंट अलग होते हैं, राइट। सो आईएएस इज इन चार्ज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट डील विद डिफरेंट थिंग्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर. The IAS is an all India service. So IAS कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? हमने 3 कैटेगरी पढ़ी ना, सेंट्रल, स्टेट और ऑल इंडिया। तो IAS comes under all India government service. So it can be at the state level, the district level or at the central level of गवर्नमेंट। कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे आईएएस ऑफिसर एम्प्लॉय हो सकता है। थ्रू आईएएस, दो आईएएस ऑफिसर्स आर एम्प्लॉयड बाय यूनियन गवर्नमेंट, दे कैन वर्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट और एनीवेयर इन इंडिया। इनको एम्प्लॉय कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर वो पूरे देश में कहीं पे भी उनको काम मिल सकता है और वो काम कर सकते हैं। To start with, an IAS officer is appointed to work in particular state or union territory. ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस है, employed by central government. They can work both in state, central or district level. First, they are given work under the department of state government और union government. उन्हें यूनियन टेरिटरी के अंडर में भी काम मिल सकता है और उन्हें स्टेट के अंडर में भी काम मिल सकता है, ठीक है। पहले क्या होता है कि उनको कोई स्टेट के अंदर काम देते हैं या तो कोई यूनियन टेरिटरी, जैसे जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, ये सारी यूनियन टेरिटरी है ना, अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सारी यूनियन टेरिटरी है। तो उनको यूनियन टेरिटरी या तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर काम मिलता है, ओके। First to start with, an IAS officer is appointed to work in particular state or union territory. He or she may later be asked to work under the union government. फिर उसको यूनियन गवर्नमेंट के काम के लिए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर उन्हें यूनियन गवर्नमेंट भी काम पर बुला सकती है, ओके।
Further, they can be given the work of union government. One of the thing an IAS officer may do is to look after a district. So एक काम क्या होता है IAS ऑफिसर का, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना, उसे उसके वर्किंग में उनकी फैसिलिटी उनको देना, एक डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपर फैसिलिटी मिले उसका ध्यान रखना. सो IAS लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ओके. इसीलिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट जो मिलती है वो कलेक्टर पोस्ट होती है, ठीक है. सो वन ऑफ द थिंग एन IAS ऑफिसर may do is to look after a district, and it is called district magistrate or district collector. A DM is also called district collector. तो जो कलेक्टर्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, वो IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है. इन एडिशन टू IAS, ईच स्टेट हैज इट्स ओन सिविल सर्विस. अभी स्टेट को अपनी अपनी सिविल सर्विसेज के पोस्ट पे भी एम्प्लॉयज है, ठीक है. स्टेट सिविल सर्विसेज के अंडर जो जो स्टाफ आता है, जो जो एम्प्लॉयज आते हैं, ऑफिशियल्स भी आते हैं, ठीक है. हुज ऑफिसर्स वर्क अंडर द IAS ऑफिसर. सो ये IAS ऑफिसर होते हैं, उनके अंडर कौन काम करता है, दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है. और उनके अंदर काम करते हैं स्टेट सिविल सर्वेंट्स. एक स्टेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है. कंट्री तो अपनी बड़ी है ही, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, राइट. अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट. स्टेट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और वी कैन से जिला, ओके. सो अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, सूरत एक्सेट्रा आर द सिटीज़ ऑफ गुजरात, राइट. सो हर एक जो स्टेट है उस वो डिस्ट्रिक्ट में भी उसका डिवीज़न होता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर दिया है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट, साउथ एंड हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. सो एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, ओके. उसके भी पार्ट्स होते हैं कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट. स्टेट को डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट में. क्यों किया है, डिस्ट्रिक्ट को भी एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. ये क्यों किया है डिवीजन, टू मेक द वर्क ईजियर, टू मैनेज एवरीथिंग प्रॉपरली. सो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर्स है, ठीक है, वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से एडमिनिस्टर करते हैं, सारे डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं, सिटीजन्स को सारी फैसिलिटी मिले उसके लिए, उनके लिए भी वो क्या है, सुपरविजन करते हैं. और उनके अंडर कौन काम करता है, कलेक्टर्स के अंदर काम करते हैं स्टेट सिविल सर्वेंट, यानी स्टेट के जो अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो, और उनके अंदर काम करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओके. ओके, मैनी इंटेलेक्चुअल people dream of becoming IAS, okay. So it is the highest rank of civil service and it has many benefits, okay. It is a very respectable job. इसमें हमें मैनेजमेंट करना होता है, हम काफ़ी डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, हमें कोऑर्डिनेट करना होता है मिनिस्टर के साथ, और उनके प्लान के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशनल, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है. IAS ऑफिसर के अंडर स्टेट ऑफिसर्स, स्टेट सिविल ऑफिसर्स काम करते हैं, राइट. और उनके अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं, उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है. दे गेट एकोमोडेशन,
उन्हें बड़ा घर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें रहने के लिए घर मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी मीन्स कार विद द रेड लाइट, दे गेट ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फोन बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल्स एट अ वेरी लो रेट, उन्हें ये सब कुछ बहुत ही कम रेट में मिलता है, राइट. एंड स्टार्ट वर्किंग, officers of some IAS and other civil services are trained at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. So IAS अपना काम स्टार्ट करे, ओके. उसके पहले उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, काफ़ी दूसरे सिविल सर्विसेज को भी ट्रेनिंग मिलती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में, ठीक है, जो मसूरी में है. इट इज़ लोकेटेड इन मसूरी, वहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग मिलती है. फाइंड आउट विच सिविल सर्वेंट्स गेट ट्रेंड देयर, वहाँ पर कौन कौन से को ट्रेनिंग मिलती है वो आपको फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड आउट हु लाल बहादुर शास्त्री वॉज. लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? इंडियन लीडर, राइट. He was politician and the second prime minister of India. So you have to find out about Lal Bahadur Shastri. Now the second service is IPS, okay, Indian Police Service. Second service which is important service is IPS. The Indian Police Service is also All India Service. IPS भी All India Service है, ठीक है. ये IPS जो होता है उन्हें कहीं पर भी काम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं एट द स्टेट लेवल और एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो. Each IPS officer is sent to a state where he or she works unless called by the union government for a particular job. तो IPS ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर, इंडियन पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उन्हें स्टेट के अंडर कहीं पर ड्यूटी मिलती है, ओके. जब तक उन्हें यूनियन गवर्नमेंट किसी काम से नहीं बुलाती तब तक उन्हें स्टेट के लिए वर्क करना है. दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर सम वर्क एट द यूनियन government level. In addition to the IPS, each state has its own police service. IPS तो होते ही है सब स्टेट के पास, बट अपने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं. They also have other police staff. Each state has its own police service. You might have heard of the police officers called Superintendent of Police. Superintendent of Police, that is SP, and Inspector. आपने इंस्पेक्टर सुना होगा. सो जो SP होते हैं ना, Superintendent, इंस्पेक्टर, पुलिस, इज IPS ऑफिसर. जो SP होते हैं, Superintendent Police, they are IPS, while other inspectors, constables, they are state police staff. The inspector working under the IPS are officers of state police service. जो IPS अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, दूसरी पुलिस फोर्स होती है, वो स्टेट की पुलिस फोर्स होती है. Perhaps you know about some of the things that an IPS looks after. आपको पता ही है पुलिस IPS जो होते हैं वो क्या काम संभालते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ओके. व्हाट इज़ द रोल ऑफ IPS एंड द पुलिस? द रोल ऑफ IPS इज़ टू मेंटेन द पीस, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है. क्रिमिनल को फाइंड करना उनकी ड्यूटी है, राइट. Perhaps you know some of the things that an IPS looks after: maintaining peace and order, preventing and investigating crimes. वो फाइंड आउट करते हैं
कि क्राइम किसने किया है, सो दे इन्वेस्टिगेट, दे फाइंड आउट, वो कार्यवाही करते हैं, ठीक है, जांच पड़ताल करते हैं, राइट, दे फाइंड द ट्रूथ, दे ट्राई टू फाइंड द क्रिमिनल. ओके, दिस ऑल आर द ड्यूटीज ऑफ IPS ऑफिसर. Investigating a crime means finding out who has done the crime, who has committed it. The Central Bureau of Investigation, जिसे हम कहते हैं CBI, the Central Bureau of Investigation investigates the crime. वो भी जांच पड़ताल करते हैं, क्रिमिनल के बारे में पता करते हैं. ओके, सो जो CBI है वो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वो CBI की जो पूरी टीम होती है उसमें सीनियर IPS ऑफिसर्स भी होते हैं. ओके, सो जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं, वैसे जो क्राइम होते हैं, बड़े क्राइम्स होते हैं, उसकी जांच कौन करता है, CBI. और CBI में सीनियर IPS ऑफिसर्स CBI की टीम में होते हैं. ओके, द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द CBI आर IPS officers. IPS officers also lead the police units that fight terrorists. Okay, terrorist क्या होता है, आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी का मतलब होता है टेररिस्ट. ओके, सो इनका रोल क्या होता है कि जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, who want to destroy the country, the peace of the country, or those who want to do something bad for the country and the citizens, right? So they also fight against the activities of terrorists. Terrorists use violence to strike fear to get something they want. Terrorist क्या करते हैं, जनरल पब्लिक के बीच में उनके ऊपर अटैक करते हैं और डर पैदा करते हैं, राइट, वो डराते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स को डराते हैं और जनरल पब्लिक के बीच में जाके उनको हार्म पहुंचाते हैं. So they use violence to strike the fear to get something they want. If they want to free their captured people, okay, अगर उन्हें अपनी ही टेररिस्ट एक्टिविटी में जो पकड़े गए हो या उनके जो क्रिमिनल्स हमारे यहाँ पे पकड़े गए हो उनको छुड़वाना होता है ना, तब वो लोग ब्लैकमेल करते हैं, जनरल पब्लिक को हार्म करते हैं. ओके, दे हैरस public and they create the fear. Such things are also managed by IPS officers. So IPS officer होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते हैं. ओके, दे टेक केयर दैट peace and order is maintained. Okay, they find the criminals and represent them in the court. ये उनकी ड्यूटीज़ होती है, राइट. द नेक्स्ट सर्विस इज IFS. द थर्ड इज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, द इंडियन फॉरेन सर्विस. As the name suggests, this is related with foreign. Okay, so Indian Foreign Service, IFS. You may have guessed from the name that this service does the work related to foreign countries. Foreign यानी क्या, इंडिया के बाहर, अपनी कंट्री के अलावा की कंट्रीज, जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, या तो ऐसी कंट्रीज जहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं, राइट. सो यू माइट हैव गेस्ड दैट दिस सर्विस डज द वर्क related to foreign countries. The IFS officers are posted to different countries. Okay, they are posted to different countries. उन्हें अलग अलग countries में भी काम मिलता है. Okay, they have to visit other countries also and have to work in the other countries also. ठीक है, they have to work in other country for our country. ठीक है, हमारे कंट्री के लिए उन्हें बाहर भी जाके काम करना होता है. वेयर दे रिप्रेजेंट इंडिया, बाहर वो लोग जाते हैं, वहाँ वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं.
दे वर्क टू इम्प्रूव आवर टाइज विथ अदर कंट्रीज। वो लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री के रिलेशन को मेंटेन करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन होता है हमारी कंट्री का, उसे मेंटेन करते हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, या जहाँ पर हमारे जो सिटीजन्स है वो सेटलमेंट के लिए जाते हैं, कल्चर हमारा मेंटेन करते हैं वहाँ पर, और एजुकेशन जो यहाँ से हम फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, या वहाँ से कोई यहाँ आता है, सो रिलेशन इम्प्रूव करते हैं। द IFS ऑफिसर्स इम्प्रूव द रिलेशंस ऑफ आवर कंट्री विथ अदर कंट्रीज एंड दे इम्प्रूव आवर टाइज in the fields like trade, culture and education. The highest ranking IFS officer in a foreign country is known as ambassador. ठीक है, अभी जो IFS में लेवल्स होते हैं, जो सबसे हाई पोस्ट पे IFS होते हैं, जो हाई रैंकिंग IFS ऑफिसर होते हैं, वो एम्बेसडर होते हैं। ओके, द सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द सीनियर मोस्ट एंड द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर विच रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन अनदर कंट्री इज एम्बेसडर। द एम्बेसडर एंड द पीपल वर्किंग विथ हिम और हर मेक अप द इंडियन एम्बेसी। ठीक है, आपको समझना है एम्बेसडर कौन है, जो हाई रैंकिंग के पोस्ट पे IFS है, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो। और एम्बेसी कौन है, जो उनके साथ काम करते हैं, वो। ठीक है, in that country, in the Commonwealth countries, an ambassador is called the High Commissioner. Commonwealth countries कौन सी होती है, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कुछ टाइम पहले ब्रिटिशर्स ने रूल किया हो। ओके, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर ब्रिटिश राज रह चुका हो, लाइक इंडिया, सो दे आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो एम्बेसडर होता है उसे हाई कमिश्नर कहते हैं, एंड एम्बेसी को कहते हैं हाई कमीशन। द कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच वर अंडर द ब्रिटिश अर्लियर। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होती है, जो ऐसी कंट्रीज़ के बीच में होती है जो कॉमनवेल्थ ग्रुप के अंडर आती है, ग्रुप के में आती है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, ये सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के में आती है। ओके, और ऐसी कंट्रीज़ में जो हाई पोस्ट IFS होता है वो एम्बेसडर होता है, और जो जहाँ वो काम करता है, जो जिनके साथ वो काम कर रहा है, वो एम्बेसी होते हैं। ठीक है, वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब काम करवाने के लिए हमें एम्बेसी में जाना पड़ता है। यहाँ पर भी हम एम्बेसीज होती है, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर एज एन एम्बेसडर काम करते हैं, और हमें भी जब यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाना हो, ठीक है, तो हम लोग को भी वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओके, हम लोगों को भी एग्जामिनेशन भी देने पड़ते हैं। सो एम्बेसी जो होते हैं हमें उनकी विजिट लेनी पड़ती है। IFS ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड फॉर अबाउट 3 years। इन्हें 3 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। दे आर ट्रेन्ड फॉर 3 years, starting with their training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. Later, each officer is trained in a foreign language. 3 years उन लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। ओके, IAS को, IFS को, उन दोनों को यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
3 साल के लिए IAFS ऑफिसर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद उनको एक फॉरेन लैंग्वेज में ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में काम करना है अपने लिए, ठीक है। फॉर इंडिया दे हैव टू डील विद द फॉरेन कंट्रीज एंड देयर एग्जीक्यूटिव्स, सो दे आर ट्रेन्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज. This helps them in their work because their work is they have to deal with the foreign countries and the foreigners and represent India. So this knowledge, this training and foreign language will help them in their work. Apart from working in Indian embassies abroad, ठीक है, वहाँ पर तो वो लोग काम करते ही हैं आउट ऑफ कंट्री में. वहाँ पर एक ऑफिस होती है, ठीक है, वहाँ पर एम्बेसडर काम करते हैं इंडिया के लिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, IAFS ऑफिसर्स वर्क इन इंडिया ऑन थिंग्स रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज के रिलेटेड जो वर्क होता है उसके लिए इंडिया में भी IAFS काम करते हैं. द IAFS इज अ सेंट्रल सिविल सर्विस. तो इनकी पोस्टिंग स्टेट में नहीं होती है, राइट. दे आर पोस्टेड इन द सेंट्रल लेवल ओनली. So IAFS is a central civil service. ठीक है, IAFS सेंट्रल सिविल सर्विस है. Unlike officers of all India service such as IAS, IPS, IAFS workers, officers only work under the central government. ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते हैं. ओके, हमने देखा IPS है, उन्हें स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, और IAS है, उन्हें भी स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बनाया जा सकता है. बट IAFS क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स दे आर इन द सेंट्रल लेवल, दे वर्क अंडर द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. Okay, they may be posted in other country to represent India, or they may be posted in India only at the central level. Okay, they manage all the works which are related to foreign countries. In this image you can see India's ambassador, यानी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, IAFS है, वो US को वेलकम कर रहा है, US के प्रेसिडेंट को वेलकम कर रहा है, ठीक है, यानी बराक ओबामा को वेलकम कर रहा है और उनकी वाइफ को वेलकम कर रहे हैं. कहाँ पर, मुंबई में. सो IAFS की ये भी ड्यूटी है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से लीडर्स आ रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज से उनके नेता या कुछ आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम करना. इंडियाज़ एम्बेसडर सेकेंड इमेज में है. इंडियाज़ एम्बेसडर टू कुवैत साइनिंग अग्रीमेंट ऑन इंडियाज़ बिहाफ इन कुवैत. ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इंडिया के बिहाफ पे, फॉरेन में अगर वो लोग हैं तो इंडिया के बिहाफ पे उन्हें एग्रीमेंट या पॉलिसी भी साइन करनी होती है. सो दे रिप्रेजेंट इंडिया. अभी ये सारी सिविल सर्विसेज है, उनके लिए अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उन्हें पहले एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, राइट. दे हैव टू give an exam and pass the levels to appoint themselves. ठीक है, तो the UPSC, ठीक है, the Union Public Service Commission, Union Public Service Commission, UPSC in न्यू दिल्ली. ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है. UPSC is organization, okay, it is an commission in New Delhi which holds the exam every year to select the young men and women. ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, UPSC की एग्ज़ाम्स होती है जो हर साल होती है, जिसमें यंग मैन और वुमन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें सेंट्रल या तो ऑल इंडिया दोनों में से कोई भी सिविल सर्विस मिल सकती है. It also appoints officers from state civil, police and forest services to all the 3 all India services. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एक UPSC, ठीक है, जो हर साल कंडक्ट होती है. और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी काफ़ी लेवल्स होते हैं,
जिनको अगर आप क्लियर करते हो तो आपको सेंट्रल, स्टेट या ऑल इंडिया तीनों में से कोई भी एक जॉब मिल सकती है, जिसके लिए आप अप्लाई करते हो वो जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम होती है न्यू दिल्ली में। ओके, यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर। ओके, एंड इन दिस एग्ज़ाम young men and women can apply for civil services. Okay, and some qualifications are needed to apply for this kind of civil service competitive exam. Okay, and for your bright future you can aim of getting some civil services. आपको civil services के लिए तैयारी भी आप कर सकते हो थोड़े बड़े होकर। तो आपको अभी से गोल बनाना है, राइट, कि हमें सिविल सर्विसेज की अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो, ओके, कोई ऐसी पोस्ट पे रहना चाहते हो, तो आपको जो है वो यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी होती है, राइट। सो यू कैन हैव अ गोल और एम फ्रॉम राइट नाउ ओनली यू कैन प्लान। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर इन विच वी स्टडीड अबाउट आवर सिविल सर्विसेज, कैसे सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उन्हें वो कैसे मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं सब मैनेज करने में और सब एक्चुअल वर्क इम्प्लीमेंट करवाने में। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।